Friends, good morning, everybody. This is Shamal here. Today I'm going to recite my few poetries that I have decided that from beginning, right, the poetry what I've been writing when I was very young at the age of 14, 15 years, then till my 22 years up to that period, that is 14 to 22, that is close to 8 years, my জার্নি অফ পোয়েট্রি হোয়াট এভার আই হ্যাভ রিটেন, যেটুকু কবিতা আমি 8 বছরে রেখেছি সেটুকু আমার কিছু কবিতা পাবলিশ ফর্মে আছে, যেটা দুটো বই আছে, প্রায় 120 ক্লোজ টু দ্যাট প্রবলি, ছোট বড় কবিতা মিলে 120। কিছু অলিখিত কবিতা আছে যেগুলো ডায়েরিতে পড়ে আছে, সেগুলো পাবলিশ হয়নি, ইচ্ছে আছে সেগুলোকে পাবলিশ করার। একটা কালেকশন অফ পোয়েট্রি বুকস করার একটা ইচ্ছে আছে, সেটাকে বাংলা, ইংরেজি ওর হিন্দি যে কোনোতে ট্রান্সলেট করা, নিজের মতো করে ট্রান্সলেট করা। যদিও আমি বলেছি কবিতাকে ট্রান্সলেট করা যায় না, সেটা কবিতার যে মাধুর্য বলো সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, সেটা আমি বারবার বলেছি। সেটা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি যেমন বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট হয়েছে, সেটা একটু মানে বোঝা যায়, সেটা সবারই ক্ষেত্রে। কারণ অরিজিনাল যে ভাষাতে কবিতা লেখা হয়, সেটা মাতৃভাষা হোক, যারা যে ভাষাতেই লেখে তার মধ্যে যে ভাষার যে স্ট্রাকচারাল পার্ট থাকে, সিলেকশন অফ ওয়ার্ড, চয়েস অফ ওয়ার্ড যেগুলোকে বলি, সেগুলো কিন্তু ইংলিশে বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে সেই জিনিসটা নিয়ে আসা যায় না। আমি এ নিয়ে অনেক কথা বলেছি, যেমন অনেক হেসে কথা বলেছি যে সাউথ ইন্ডিয়াতে ধোসা হয়, নর্থ ইন্ডিয়াতে যদি ধোসা ইডলি বানানো হয় স্বাদটা কীভাবে চেঞ্জ হয়ে যায়, সেমনিভাবে পোয়েট্রিকেও তুমি ইফ ইউ ট্রান্সলেট ইট, the way you are making idli dosa in South India and in North India and how they are making idli dosa, the taste is totally different. The poetic taste will be totally different from the original mother language to any other language. This is the only thing I want to convey. And another purpose of understanding my poetry is to understand myself. I mean, what I was, my thought process was there at the age of 18, 14 to 22. Probably if you analyze the poetry, then you will understand that what kind of poetry it is there. I always believe that whoever is writing any creative thing, it is possibly most of the thing, it is a reflection from his or her mind, and it directly reflects either in a painting or literature or any creative thing, and whatever is there in the mind, or that time whatever the things are happening in the society, or the understanding, philosophical understanding. At the age of 14-15 বয়সে অনেক কিছু philosophical understanding হয়ও না, যেটা is a lot of things probably maturity, not in a very mature form. তবুও ওই যে বয়সে কবিতাগুলো বেরিয়ে আসে, সেই কবিতাগুলো কিন্তু it has got a lot of emotions, and because of emotions there are a lot of poetry that comes, a lot of literature, অনেক যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্য, যেটা আমি বলেছি যে যে মানুষটা 20 বছর বয়সে মারা গেল, তার কবিতা 20 বছরে যদি মারা যায়, সে কবিতা লিখতে শুরু করছে 10-11 বছর বয়স থেকে। তার কবিতার মধ্যে যে ডেপথগুলো আছে, দ্যাট বাংলা এখনো পর্যন্ত, বাংলা জগতের যদি আমরা কবিতা নিয়ে অ্যানালিসিস করি, একটা ছোট একটা শর্টেস্ট লাইফকে যদি একটা যে কোনো বড় মানুষের মাপের কবির সাথে যদি আমরা এটাকে আলোচনা করি, কিন্তু সেটা প্যারালালি রাখা যাবে বলে মনে হয়। আরেকটা জিনিস আমি বলেছি যে কবিতা বা লিটারেচার অনেক কিছু লিখলে নিলেই যে তুমি বড় কবি হয়ে গেলে তাও নয়, বা অনেক বড় লেন্দি কবিতা লিখে নিলেও সেটা বড় কবিতা হয়ে গেল, মানে অনেক ভালো কিছু হয়ে গেল তাও নয়। কবিতার অর্থ হচ্ছে তুমি কত বড় আইডিয়াকে ছোট জিনিসের মধ্যে তুমি
সংক্ষিপ্ত করতে পারো, সেটা পাঠকরা সেটা ডিকোডিং করবে। তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বড় আইডিয়াটাকে কনডেন্স করে রাখো, সেটা পাঠকরা ডিকোডিং করুক। দ্যাট ইজ দ্য হোল আইডিয়া অফ রাইটিং পোয়েট্রি। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রাইটিং পোয়েট্রি, প্রোজ, short stories and novel. What I was trying to tell that if somebody has to be judged as a poet with world literature, first of all the content is very important. What is the thematic area you are writing, and the selection of word, choice of word, and how in condensed form you are writing a very big thought into a very smaller form. It has to be given to the choice and wisdom of the reader to judge or to decode those kind of things, to come out to a kind of a conclusion what it means about this poetry, what is the meaning of the poetry. दोस्त लोग, मैं फिर से हिंदी में भी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारा हिंदी पोएट बहुत सारा कविता लिखती है, नोवेल लिखता है, बहुत सारा क्रिएटिव वर्क अपना लिटरेचर में, अपना पोइट्री बुक में पब्लिश करता है, नोवेल पब्लिश कर लेता है। मेरा कहने का मतलब यही है, हम भी थोड़ा मोड़ा चीज़ लिख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो लिख नहीं पाता है। बचपन से भी लिखा है मैंने, 13.5-14 साल का उम्र से अपना पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। 22 साल में अपना कविता पूरा ख़त्म कर दिया, इसके बाद कविता लिखा नहीं। मैंने सोचा कविता लिख के कुछ नहीं होता है, कविता लिख के हमारे जैसे समाज में इसमें आपके लिए कोई जगह नहीं होता है। मैंने बहुत सारा पोएट का बायोग्राफी भी पढ़ा, प्रवाटी में चले जाते हैं, ज़िंदगी में अच्छा कुछ कर नहीं पाते हैं उसका अंदर में। पोइट्री, ये हमारा देश कोई यूरोप नहीं है और राशिया नहीं है। एक ज़माना में आप अच्छे क्रिएटिव वर्क करते हो तो समाज आपको कुछ देने वाला है, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है। हम समझ गया था 21-22 साल में मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ पे। আমি বাংলাতে ওই কথাটা বলছি যে কবিতা যারা লেখে তাদেরকে নিয়ে সমাজ কোনো জায়গা দেয় না। কবিতা নিয়ে অনেক কবি আছে, আজকে যে কবিগুলোকে আমরা প্রাইজ পেয়েছে দেখেছি, যদি একটা কবি দেখি তার নিচে আরও 10,000 কবি আছে যারা তলিয়ে আছে, যাদের ইতিহাস আমরা জানি না। ইট ইজ দ্য সেম লাইক থিং লাইক নো ওয়েন ইউ সি এ গুড এন্টারপ্রেনার, এ সাকসেসফুল বিজনেসম্যানের, in down the line there are many unsuccessful business talent जिसको हम नहीं जानते हैं. It is not known to anybody. Only few figures are known, because every success story, if you analyze, there are thousands of unsuccessful stories. Those are not known to many, and nobody also wants to know. Who wants to know the unsuccessful story? किसी के पास कोई टाइम नहीं है, किसी का ज़िंदगी में सक्सेस नहीं है तो उसको समाज में कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो उसका घर पे वैल्यू है, समाज में वैल्यू है, रास्ता पे वैल्यू है। कई जगह में अनसक्सेसफुल पर्सन को वैल्यूज़ नहीं रहता है। इसीलिए दिखा गया है, जो बहुत सारा पोएट होता है ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ लिखता है, नाम छुपा के लिखता है, नाम चेंज करके लिखता है। वो भी रविंद्रनाथ ने किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएट ने किया है। भले उसमें गलती हो जाए, अगर अच्छे नहीं होता तो अपना जो निक नेम होता है उसमें चला जाएगा, सो अपना नाम छुपा के रखते हैं। बहुत सारा पोएट होता है, जैसे जीवनानंद दास मैंने बताया था, अपना ज़िंदगी में सब कुछ लिखते थे, अपना अलमीरा के अंदर में डाल के रखते थे, मरने के बाद उसका दस्तावेज मिला। तो those are the things, right? They understand the society. The writing poetry is not going to give you instant result. Only thing, you can satisfy your creative thoughts, creative needs, or something like that. It is for your own satisfaction. But nobody is there to appreciate, even no family members. As I've been telling that, even for the film, creative world, if you think of the life of Satyajit Ray, Mrinal Sen, the greatest filmmaker in India, see their life. It is not they had a very smooth life. They could have also made lot of commercial film. They could have made money like anything, but Satyajit Ray never ever indulges such kind of activities. That is very known to everybody, and why
he has not done is because it's a very kind of a conscious decision. Because the people who wanted to be in the creative world, their love for the creative thing, they only respect the art. If you respect the art, similarly, you respect the literature, a good poetry. A lot of good poets, they don't write for many other popular magazine like during Durga Puja, there are big volume of novels, all those things used to have. The different magazine used to give a lot of money, but the actual poet, whoever the great poets, they don't write because it has to be written in a proper time. They will be giving certain time within 2 3 days or 4 days. You send us the manuscript and this correction, those things. Nobody wants to, because once you want to do, अगर किसी को क्रिएटिव वर्क करना है उसके लिए आपको टाइम चाहिए. टाइम चाहिए मतलब आप सामने वाला अगर डिमांड कर रहा है मेरे को कोई लिख के दो, उससे क्रिएटिव कोई चीज़ नहीं होता है. अगर वो पेंटिंग हो जाए, कोई अच्छी लिटरेचर हो जाए. इसीलिए आप जितने सारे हिंदी बांग्ला में अच्छे अच्छे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सब ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं. लिखने के बाद वो क्या करते थे, अपना जो उसको पांडुलिपि बोलता है, 3 साल 4 साल अंदर डाल रखते थे, इसके बाद वो निकालते थे. मतलब मैंने इस टाइम बार बार ये चीज़ बोल रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया होता है, आपने फर्स्ट स्टेज में उसको अगर पब्लिश कर दिए है, उसके अंदर में बाद में आपको लगेगा ये अच्छा नहीं था, पहले वो होना चाहिए था, फ्लैशबैक होना चाहिए था, इसके बाद ये प्लॉट होना चाहिए था, ये कैरेक्टर, ये नाम अच्छा नहीं है. बहुत सारा चीज़, बहुत आइडिया होता है. इसके लिए आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा. कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हो, आप लिखो. लिखने के बाद अगर डेली लिखना प्रैक्टिस करते हो, जैसे होता है ना घर का आचार जैसे होता है, आज एक अचार बनाया, कल बनाया, परसों बनाया, तरसों बनाया, इसके बाद जो सबसे वाली पुराना आचार होता है उसको खाने का लायक हो जाता है. सिमिलर हो, आप डेली लिखना चालू करोगे तो आपका पुराना जो पांडुलिपि है उसको करेक्शन चालू करो. 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद वो करेक्शन करके आप खुद उसको देखो, 50% आप उससे निकाल दोगे. ये सही नहीं है. बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग द लिटारेरी सेंस, যেটা আমার কথা বলার ওর মধ্যে লিটারেরি মিনিং নিয়ে আসার চেষ্টা করা, একটা প্রপার একটা ক্রিয়েশন, যেটাকে আমি বলতে চাইছি. ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ রিয়েল creative work, read the Wordsworth, Shakespeare, Shelley, Keats, Byron. They have not written many things, right? No, few volumes probably, few poetries, but those each poetry is different from another poetry. That is what it is in more important. जो एक पोइट्री आप लिखते हो दूसरे पोइट्री से कितना अलग है. नहीं तो आप पहले वाला पोइट्री पढ़ोगे तो दूसरा बड़ा पोइट्री पढ़ोगे, उसी को मीनिंग, उसी का वर्ड आ जाता है. मैंने बांग्ला लिटरेचर में बहुत सारा पोइट के बारे में बताया है कैसे एक कॉपी पेस्ट टाइप का होता है, मोनोटोनस हो जाता है. फाइनली क्या होता है आपका लिमिटेड स्टॉक ऑफ वर्ड्स के अंदर में आप रिवॉल्व करते रहते हो. आपको आइडिया लेवल आप एक्सपेंड नहीं कर पाते हो. सॉरी. First of all, your philosophy of writing poetry dimension has to be increased. That is what I have been telling. If you increase the dimension, your thought process, analytical process, अगर अच्छा आप analytical process, thought process को बढ़ाते हो, different thematic area के ऊपर लिखते हो, आपका जो किताब आप पब्लिश करते हो 30 40 50 पोइट्री के साथ, अगर एक पोइट्री दूसरे के पोइट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, तब वो आपको जो माइंड का एनालिटिकल पावर, आपको यू आर ए पावरफुल पोएट, उसको समझ जाता है. नहीं तो एक ही चीज़ रिपीटिशन होता है तो आपको अच्छा पोएट हिसाब से मैं उसको नहीं मानता हूँ. बिकॉज इट इज़ द सेम आइडिया, लाइक यू नो, आपने क्या बताओ, आपको आप ऑमलेट बनाया, ऑमलेट पकौड़ा बना लिया, ऑमलेट में थोड़ा सा मिर्ची डाल दिया, किसी में थोड़ा सा हल्का सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा हाफ बॉयल कर लिया, बट फाइनली वो तो अंडा ही रहता है. उसको फिलोसफी अंडा ही, आप कैसे भी खाओ अंडा ही रहेगा. सिमिलर वे आप कोई भी आइडिया के, आप फिलोसफी का कोई भी एक आइडिया पकड़ लो, आप एक पोइट्री लिख रहे हो, आप एक चीज़ का डिस्क्राइब कर रहे हो, वही चीज़ को दूसरा वर्ड में, दूसरा चीज़ में मॉडिफाई कर लो.
because your object remains same at the end of the day. Similarly, many poetic thoughts revolves around one or two ideas that is more boring, monotonous, and it is a very negative. And this negative thought process I am seeing যে দুঃখবাদী যেগুলোকে বলি, মায়া মায়া দুঃখবাদী এই কবিতার মধ্যে থাকা ঠিক নয়। You might be personal level, you can have your own maya, dukkha, and all those things. But when you are writing poetry, you should not give your entire one, two poetry is fine if you are sad and you can express that part, but your entire thing, your entire bunch of literature is revolved around दुखो। इतना दुख क्यों है? वही तो बात है, हमको भी समझ में नहीं आता। दुख सबको पसंद होता है, कभी कभी दुख को लेके वो भी दुखी हो जाता है। मेरे को दुख से बहुत नफरत है, ऐसे हम बहुत दुखी है। समाज का इतने सारे चीज़ से हम दुखी है, डे टू डे बेसिस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री बंद है, जॉब नहीं है, कोई काम दाम नहीं है, अपना कुछ कर नहीं पा रहा है, घर का अंदर में बंद है, वैक्सीनेशन नहीं है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स है। उसके ऊपर से अगर आप कविता का भी दुख लेके आओ, लिटरेचर में दुख लेके आओ, अब कितना सारा वो एक दुखों का पोडला बन जाता है। वो पोडला के अंदर में आओ, लिटरेचर का भी एक पोडला आ जाता है। ये पोडला कैरी करने का ज़माना ख़त्म हो गया, ये सब चीज़ नहीं है। बी प्रैक्टिकल, बी रैशनल, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग, दैट योर एनालिटिकल थॉट प्रोसेस, योर डायलेक्टिकल थॉट प्रोसेस, रैशनलिटी, आपका जो लॉजिक है अंदर में, आप जो सब्जेक्ट में पढ़ाई किया उसको आप इंटरप्रिटेशन में लाओ। जैसे मेरा पोइट्री में, मैं 22-23 साल में जितने सारे पोइट्री मैंने लिखा, इतने को, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कम से कम 500-600 वर्ड है जो बंगाली लिटरेचर की मैंने इंट्रोड्यूस किया है। उसके अंदर में मैं समाज को एनालिसिस करने का कोशिश किया है। आई हैव डन इन मेनी वेज, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट आई डिड, इवन दोज आर वेरी स्मॉल पोएट्री and those are done at very early age, that at the age of 14, 15, 16, what idea you have about the society? Absolutely nothing. आप 12-14 साल में समाज के बारे में क्या जानते हो? घर का खाते हो, पापा मम्मी पैसा देते हैं, घर वाले पैसा देते हैं, पढ़ाई करते हो, ज़िंदगी भर सोचते नहीं हो। 12, 13, 14, 15, 16, 18, उसमें कोई समझने का कोई बात ही नहीं होता है। उसका अंदर में अगर आप कोई समाज सोच लेता है, कोई रिवोल्यूशन के बारे में पोइट्री लिख लेता है, कोई अच्छी चीज़ के बारे में लिख लेता है, 10 पन्ना लिख लेता है, बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात इन दैट सेंस में होता है, एक इमेजिनेशन। वो बड़ी कविता कैसा है, नहीं कैसा है, अच्छे है बुरा है, वो तो जो सामने वाला पढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट इज़ नॉट दैट, मैं इस बात में भी विश्वास नहीं करता है जो पोइट्री को आप बोलते हो इतने सारे आदमी लाइकिंग करता है। देखिए, सत्यजित राय का फिल्म बनता है, हॉल में 10 आदमी भी नहीं बैठता है। अब मृणाल सेन का पिक्चर बनता है, 25 लोग को इकट्ठा करना में मुश्किल हो जाता है। आप एक आर्ट फिल्म बना के जाओ, उसमें आदमी को बुला बुला के, आओ भाई टेबल खराब, चेयर खाली है, आप जाके फ्री में बैठ जाओ। हमने ये सब बचपन में देख चुका है। आप फिल्म बनाओ, अच्छा 10 गाना दे के 5 करके एक फिल्म बना दो, उसके अंदर में आपको पब्लिक आ जाता है। इसका मतलब ये कोई पैरामीटर नहीं है जो इस चीज़ को हम समाज में, मैं यही चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, सही है गलत है। आपने अच्छे पैसा बॉक्स ऑफिस में बना लिया, मतलब आपका पिक्चर बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? आपका जो आजकल का दिन का जो चित्र परिचालक है, वो सत्यजित राय का फिल्म से भी बहुत अच्छा पिक्चर बनाता है, अगर पैसा ही पैरामीटर है। ये जो फिल्म क्रिटिक है, ये सब बनाता है, ये लोग दे आर बीइंग पेड, दे आर बीइंग पेड टू राइट ऑल काइंड ऑफ थिंग। एंड एज ए पब्लिक को जो फिल्म में जाता है, इतना वो एंटरटेनमेंट में के लिए जाता है, वो समाज को समझने के लिए कोई फिल्म में नहीं जाता है। इसीलिए सीरियस थिंकर जो होता है, उसके लिए एक क्रीमी पीपल होता है जो इंटेलेक्चुअलिज्म को समझता है, फिल्म को समझता है, लाइट इफेक्ट को समझता है। सत्यजित राय को समझना है तो फ्रांस वाला समझता है, अदरवाइज हमारा वो बस का बात नहीं था।
मैंने इस चीज़ को बार बार बोल रहा था, अच्छे क्रिएटिव वर्क, एक पोइट्री भले वो 2 लाइन का हो जाए, 10 लाइन का हो जाए, नाम से बिकता है भाई वो पोइट्री कौन ने लिखा है। पोइट्री का कंटेंट मत देखो, उसी में चलता है। अब समाज हमारा इंडिया में ऐसा ही कहानी है। दोस्त हम जैसे बार बार वही बात कर रहा है, एक ही चीज़ में घूम फिर रहा है, क्यों? কেন আমি ফিরে ফিরে আসছি that is writing poetry is a very very tough thing. Writing serious poetry is tough thing. If you write a serious poetry, if you getting a serious reader is a tough thing. You write vulgar thing, there are many people, there are many likings, many people to appreciate those vulgar thing. But when you write a very nice poetry, very decoded poetry, it has got a lot of inner meaning, lot of sociological impact, social fabric, social structure, all those things dissecting the society, hierarchy, democracy. If you take one poetry, you can talk about philosophy, you can talk about social structure, all kind of barrier demolition, and also social reform in a poetic form. Similar way, dissecting nature, understanding pollution in a different way. Probably nobody has got time to do it, only the serious thinker probably. That is what I was telling. Writing poetry is not a, like writing a paper is not everybody's cup of tea, right? When you do PhD, not everybody is going to university or everybody is going to all the good academic institute to do PhD or pursue certain things, because they have certain interests. That's why they go. There are a lot of brilliant minds, they don't like to get into job because they want to have those kind of creative thing. That is what the whole idea. As I have told, मैंने ये भी बताया, जो एक साइंटिस्ट के साथ, एक फिलोसोफर के साथ, एक अच्छे पोएट के साथ अच्छा एक नोवेल लिखता है, जो है वो सब एक ही आइडिया लेवल से आता है। उसको आप बोल नहीं सकते हो ये साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है। आप दोनों आपस में जब बात करते हैं, देखो वही चीज़ बात करता है, समाज का अच्छे के लिए बात करता है। तो दोस्त हमने तो बहुत कुछ देखे हैं, रविंद्रनाथ ने आइंस्टाइन को मिल रहा है, तो थ्योरी के बारे में तो शायद नहीं बोला, समाज के अच्छे के लिए बोला है, ह्यूमैनिटी के लिए बोला है। रविंद्रनाथ को क्या पता है E=mc², वो तो मालूम नहीं है। उसको मालूम है एक बड़े साइंटिस्ट है, उसको अब मिलने जा रहा है, आइडिया लेवल का बात होता है। स्वामी विवेकानंद टेस्ला को मिल रहा है, तो वो आइडिया लेवल का बात होता है। सब स्वामी विवेकानंद गिरुआ वस्त्र वाला सोचते हैं, लेकिन वो जब मैटर एनर्जी के बारे में पूछता है आपस में, तब सामने वाला टेस्ला भी थोड़ा सा सोचते हैं ये गिरुआ वाला कौन होता है ये सब चीज़ पूछने के लिए। लेकिन क्या होता है, अब कभी कभी आप ड्रेस पे चले जाते हैं, अरे भाई इसके पास क्या नॉलेज है। सिंप्लिसिटी भी बहुत सारे टाइम उसको इंसान उसको फ़ायदा भी ले लेता है, अरे यार देखो साइंटिस्ट है, क्या चप्पल में जा रहा है। तो हमारा देश ऐसा अच्छे इंसान जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं है। मैं 2-3 दिन से एक ही बात कर रहा हूँ, इस देश पे अगर स्टीफन हॉकिंस पैदा हो जाते थे, मैं स्पेशली बंगाल में कब बात कर रहा है, बंगाल में एक राजा वजह साइंस कॉलेज का एरिया है, उधर अपना बहुत सारा गरीब आदमी, बहुत सारा पागल आदमी, गरीब तो नहीं है, ऐसे ज़रूरी नहीं है पागल है तो गरीब हो जाएगा, वो बहुत सारा पागल हो गया। वो राजा वजह साइंस कॉलेज, बोस इंस्टीट्यूट, उधर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया है। जगदीश बोस, सत्येंद्र बोस, मेघनाथ शाह, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उसी लेन पे अगर कोई कलकत्ता जा रहा है, देखोगे 2-4 पागल अभी भी बैठ के रहता है, ऐसे कंबल मोड़ के उधर बैठ के रहता है। सब बोलते हैं इसी इंस्टीट्यूट से सब पास आउट किया हुआ है, पागल हो गया। मैंने वही बोला था, नॉलेज बहुत डेंजर होता है कभी कभी, तो इतना भी नॉलेज मत ले लो जो आप पागल हो कि उसी का कैंपस का बाहर बैठ जाओ। सो नॉलेज इन विजडम जैसे होता है, उसको एक्सरसाइज बहुत गलत तरीक़ा से हो जाता है। लाइफ को बैलेंसिंग एक्ट पे देखना, ये सब चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इम्बैलेंस हो जाता है तो आप रास्ते पे आ जाते हो। सही बात है, बहुत सारा आदमी सुने हैं ये बात को। मैं स्टीफन हॉकिंग से बात कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग अगर इंडिया में पैदा हो जाते थे, उसको तो
बोल नहीं पाता था बेचारा, कुछ नहीं कर पाता, उसमें सिंथेसाइजर लगा के इतना सारा चीज़ टाइम के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर इतने सारे रिसर्च करके चले गए। तो हमारा देश इसके लिए नहीं है, टैलेंट को नर्चर करने के लिए नहीं है। घर वाला भी जब आप देखते हो कविता लिखते हैं, आपको 10 बात सुना देता है, भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज गलती वो लोग का भी नहीं है, बिकॉज वही चीज़ में वो लोग एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने यही बात को बोल रहा था, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो एंटरप्रेन्योरशिप एक कहानी है जो इंडिया का इकोनॉमिक्स को बदल सकता है। सरकार सबको चाकरी देने से अच्छा है, सरकार अगर हर एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बना दे, हर एक इंसान का नहीं, उसके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डालवा देंगे। बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट। ऑल इंडिया में अगर 140-45 करोड़ का पॉपुलेशन है, इसमें यंग जनरेशन में जो यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करेगा, नया चीज़ हम डेवलप कर लेता है, छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करेगा। आप 10 साल में टारगेट कर लिया तो 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर तैयार करेगा, तो 10-10, 20-20 नौकरी देगा, तो आपको कितना हो जाएगा? 1 मिलियन होता है तो 10 आदमी देता है तो 10 मिलियन, 10 मिलियन एंटरप्रेन्योर अगर 10 को देता है तो 100 मिलियन एंटरप्रेन्योर क्रिएट होता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ करने के लिए, लेकिन करने के लिए हमारा इच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारा ट्रेडिशनली घर पे पापा मम्मी वही बोलता है, बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर डिग्री कर ले, पीएचडी कर ले, एमबीए कर ले, डीएससी कर ले, बहुत सारा चीज़ कर ले। पढ़ाई का हमारा इंडिया में सस्ते में भी हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग खुला रहता है तो आप पढ़ाई कर लेते हो। लेकिन क्या होता है, पढ़ाई पढ़ाई करने से अच्छा है और आप नौकरी के बारे में सोचते नहीं हो, प्रैक्टिकलिटी नहीं होता है। हमारा इंडिया में बहुत सारा कम्युनिटी का अंदर में, मैं कम्युनिटी में विश्वास नहीं करता हूँ, तब भी कम्युनिटी में मेजोरिटी जैसे बंगाली लोग इंटेलेक्चुअल होता है, पढ़ाई पढ़ाई ज़िंदगी भर 50 साल में भी पढ़ाई करेगा, उसको ख्याल ही नहीं होता है नौकरी करने का भी ज़रूरत है। आ रहा है ना, घर का चीज़ आ रहा है, somebody is supporting because we believe in a joint family, whatever time is required you get all kind of support। गुजरात पे चले जाओ उल्टा हो जाता है। गुजरात पे आप ग्रेजुएशन 12th स्टैंडर्ड से लग जाता है इंसान, कैसे धंधे पे लगता है। वो लोग गुजरात में क्या बोलते रहता है, धंधा धंधा करना है। मारवाड़ी में चले जाओ, ये लोग ऐसे ही नेचर का होता है। साउथ इंडिया में दे आर ऑल्सो प्रैक्टिकल, मैनी स्टेट दे हैव। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, तो सरकारी नौकरी करना है, भले कुछ भी हो जाए, आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी बन जाओ, मास्टर डिग्री पीएचडी करके, घर वाला खुशी होता है। लिफ्टमैन बन जाओ, क्लार्क बन जाओ, पियोन बन जाओ, ऑफिस में बैंक का क्लार्क बन जाओ, बहुत खुश है घर वाला। सोचते हैं इससे ज़्यादा बेटा का सेटल हो गया, एकदम फुल सेटल हो गया, एक सरकारी नौकरी मिल गया मतलब सेटल। उसके लिए 10-10 क्या संबंध आएगा, 20-20, 25-25 लड़की का संबंध आएगा। सरकारी नौकरी है, भले कुछ भी हो जाए, लेट पे जाए, घर पे हमारा पति रहेगा। ये हमारा एक माइंड सेटअप है, ये सबको पता है। तो दोस्त, मैंने जो चीज़ बोलना चाहता है, पोइट्री के बारे में बोलना चाहते, तो मैं इंट्रोडक्शन से ही एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया। तो आप पोइट्री में भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। आपका जो एनर्जी है, आप 10 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप आर्ट से भी आप अच्छी पेंटिंग कर लेते हो, 10 बच्चों को आप अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज़ खराब नहीं है, बट उसको आप स्पेशलाइज करोगे। तो मैंने एक बार बोला था, सुबह में जो कचरा वाला कचरा उठा के लेके जाता है, साउथ पे वो कचरा को सेपरेट करके फिर से प्रोसेस करके फिर प्लास्टिक बना रहा है। उसमें बहुत सारा ब्रिलियंट माइंड जुड़ी हुई है, आईआईटी बोलो, ऑल्सो आप देखोगे, आपको जो वेस्ट मटेरियल ट्रीटमेंट एक अच्छा बिजनेस है आप जो सरकार कर रहा है। बिकॉज रिसाइकलिंग प्रोसेस जिसको आप बोलते हैं, बायो पॉलीमर थिन फिल्म मेम्ब्रेन के ऊपर काम करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम करना, इसके बाद वेस्ट मटेरियल, उससे हेवी मेटल्स निकालना है। देयर आर ऑल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, प्रॉब्ली वी शुड हैव इंटरेस्ट टू डू दैट, वी डू नॉट हैव द इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो। हम बहुत सारे कुछ कर सकता है। हम पोइट्री के बारे में बोलना चाहता है, इसमें आ गया मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में। मैं ये वीडियो इतना ही ख़त्म करना चाहता हूँ इसके बारे में बोल के।
all things are life is interconnected with many things. You are an individual, you have a social life, you have a job, you have qualification, you have your intellectual satisfaction. For that matter, you can have painting, you can have creative things, many things people do. बहुत सारा आदमी बहुत चीज कर लेते हैं, तो वो भी पार्ट ऑफ हिस्सा है। थोड़ा सा फिलोसफी कर लिया, थोड़ा सा गाना गा लिया, हमारा मिडिल क्लास में जो चीज़ होता है। देखिए, बड़े आमिर का घर से अच्छे आदमी पैदा नहीं होता है। अच्छे आदमी कभी आया क्या? नहीं आया। बहुत अमीर आदमी से कोई लिखा है पोइट्री, लिखा है कभी देखा? ये सब जो आता है लोअर मिडिल क्लास, अब अपर मिडिल क्लास, ये सब छोटी छोटी फैमिली से सब कुछ आता है। अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, नीचे से ही सब उठ के आता है। तो हमारा हर एक इंसान जो अभी यंग जनरेशन आ रहा है, सबको उसी ढंग से सोचना है। थिंक इन ए डिफरेंट वे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कोशिश करना है। कविता लिखना है, भूल जाओ रविंद्रनाथ जीवनानंद कौन था, कोई नहीं था। जैसे आप सोचते हो ना, आपका पीछे कोई नहीं है, आपका माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन है, ऐसे सोचो। सब है, लेकिन आप इतना सोचो आपको कोई नहीं है, तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको लाइफ पे मज़ा आएगा। আমি যেটা বলতে চাইছি, যেটা আমাদের মধ্যে সেলফ সাস্টেন করতে গেলে তুমি কারোর কাছ থেকে হেল্প নিও না। দেখো নিজে কতটা কি করতে পারো। তোমার কাছ থেকে, বাবা মার কাছ থেকে চাইলে তো কখনো না কখনো দেবে। নিজে কি করতে পারবে চাই সার্টেন লেভেলে, গ্র্যাজুয়েশনের পরে, মাস্টার ডিগ্রির পরে এগুলো শেখায় তোমাকে কিভাবে বড় হতে চায়। ফ্রেন্ডস, হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু টেল, টু হ্যাভ এ কাইন্ড অফ এ সেলফ সাস্টেনেবল kind of mentality. That mentality is going to help and define somebody his future journey. That is what. Be a poet, be a writer, be a science thinker, be a arts, science, or any graduate, or English literature, an engineer, chartered accountant, whoever it might be. Your philosophy has to be very, very clear and strong, and you should have strong willpower. That is the main thing. That willpower is going to lead you something. Is working physically. If you are intellectually very sound, you can, with within 1 hour, you can execute, deliver at your job to the people who is helping you in your organization. That is what the rule. Your leadership quality will be developed. That is the main thing I am trying to tell. Leadership quality is a quality probably that comes from all those philosophies, a cocktail of everything, how strong you are, leaving aside those negativism, like no, all positive things is going to help you. Friends, I want to end up this thing, and I'll take my second part of my this thing, my poetry. So I have also uploaded many poetries. My all poetries are uploaded in YouTube. Never mind, I am just going to analyze all again. It's a kind of a repetition so that I can take some thematic area, some poetry, so that this is for my understanding. I am feeling excited, happy, and some time is there. That is the only thing. Once again, thank you very much. Thank you very much. Have a nice day.